It's a habit of telling everyone your plan. Yes, I'm serious. Many people love to announce every single idea they have, every business plan, every dream to anyone who would listen. Some of you probably do it on social media, right? Hey guys, I'm starting new business. Wish me luck. Or I'm planning to do this, do that. But listen carefully, my young friends. Don't tell everyone your plans. Today, I'm going to explain why. You see, when I was younger, I made the same mistake. I was so excited about my ideas that I couldn't wait to tell everyone. I would sit down with my friends and we'd talk for hours about what we would do. We would talk about starting companies, changing the world, and becoming billionaire. Oh, how fun it was to dream. But then I noticed something. Every time I talked about my plans, things didn't go as well as I hoped. The reason? Too many opinions. When you tell everyone your plans, what happens? Everyone start giving you advice. Advice from people who have never done what you are trying to do. Advice from people who are scared of taking risks themselves. Advice from people who, let's be honest, sometimes don't even want to see you succeed. It's like inviting 100 chefs into your kitchen to make a single dish. Too many cooks spoil the broth, my friends. Too many voices confuse your direction. And then there's another problem. When you speak too much about your plans, you use up all the excitement in talking, not doing. Think about it. When you tell someone your big idea, they might say, "Wow, that sounds amazing." And for a moment, it feels like you have already succeeded. You feel good. But the problem is that feeling of accomplishment you get from talking replaces the drive you actually do it. Instead of spending energy on execution, you spend it on conversations. Instead of working quality, you are busy seeking validations. My advice: keep quiet. Let your actions do the talking. Now, some of you might be thinking, but Jack, what's wrong with the sharing my ideas? Shouldn't I ask for feedback? Shouldn't I get advice from people who care about me? Well, here's when things get tricky. Of course, you should seek guidance, but not from everyone. You see, not all advices are good advice. Let me give you an example. When I started Alibaba, nobody believed in us. People thought I was crazy. An e commerce business in China? Are you serious? The internet is for Western countries, Jack, not China. I remember one of my teachers telling me, "Jack, maybe you should stick to teachings. Business is too risky." If I had listened to them, if I had shared my full vision with everyone and allowed them to plant doubts in my mind, do you think Alibaba would exist today? Of course not. Sometimes the people closest to you are the ones who unknowingly hold you back. Not because they don't love you, but because they don't see what you see. Your vision is your vision, it's personal, it's unique. They haven't walked in your shoes, they haven't experienced your thoughts, your dreams, your aspirations. So, how can they truly understand what you are trying to achieve? That's why I said don't tell everyone your plans. Not everyone is ready to hear them. Not everyone is ready to believe in you the way you believe in yourself. And most importantly, not everyone is capable of giving you the right kind of advice. It's like planting a seed. You don't pull the seed out every day to show everyone what you are growing. No, you leave it in the soil, you water it, you take care of it. And one day it becomes a tree. Then and only then can people see the results of your hard work. When you are quiet about your plans, something magical happens. You become more focused, you stop worrying about other things, and you start focusing on the work itself. That's when real progress happens. Let me share a funny story with you. When I first started building Alibaba, there was a lot of noise. Everyone was talking about the dot com bubble, about how e commerce would never work in China. I remember attending business meetings, and people would say, "Jack, you are wasting your time. Nobody in China wants to buy things online.
We prefer to go to the markets, touch the products, bargain for the price. But what did I do? Did I go around arguing with them, trying to convince them they were wrong? No, I kept my mouth shut and worked hard. I kept my vision close to my heart and focused on building something amazing. We were a small team, working day and night, eating instant noodles, sleeping in the office. We didn't have time to talk. We busy working. And guess what? When Alibaba finally took off, everyone was shocked. How did this happen? They asked, and I smiled. I told you so, I thought, but I didn't say it out loud. Of course, that's the beauty of quiet execution. You surprise people with results, not words. Now let's talk about something else. Jealousy. This is a hard truth. But not everyone will be happy for you when you succeed. In fact, some people will be envious. They might smile your face, but deep down they don't want you to win. And you know what? When you tell these kinds of people your plans, they can sabotage you, sometimes without even realizing it. I'm sure many of you experience this. You tell someone your dream, and instead of supporting you, they say things like, "Are you sure? That sounds so risky." Or, "Do you think you're really capable of doing that?" Their doubts start to creep into your mind. You begin questioning yourself, and before you know it, you have lost confidence in your own ability. That's what jealousy does. It's subtle, it's sneaky, and it can destroy your dreams before they even start. So, what's the solution? Simple. Don't give people the opportunity to be jealous. Keep your plans to yourself. Let them find out your success when it's too late to stop you. Now, don't get me wrong. I'm not saying you should never tell anyone your plans. Of course, there are times when you need advice, when you need feedback, when you need to bounce ideas off someone else. But here's the key: be selective. Don't share your plans with people who don't understand your vision. Don't share them with people who are negative or pessimists. Instead, find a small group of trusted individuals, people who believe in you, people who have experience, people who can offer constructive criticism. In my case, I had a few close friends and mentors who supported me during the early days of Alibaba. They didn't always understand what I was doing, but they believed in my ability to figure it out. They encouraged me to keep going, even when things got tough. And let me tell you, things got really tough. There were times when we had no money, no resource, no hope. But because I surrounded myself with the right people, I was able to push through the challenges. I didn't need 100 opinions. I just need a few good ones. Let's address another issue: fear. Sometimes we tell everyone our plans because we are afraid. Afraid of failing, afraid of looking foolish, afraid of making mistakes. We think that by telling others, we're somehow protecting ourselves. We think that if we announce our plans to the world, we'll be held accountable and therefore more likely to succeed. But here's the truth: fear is a terrible motivator. If you are making decisions out of fear, you are not thinking clearly. You are not acting from a place of confidence. Instead, you are letting other people's opinion control your actions. Don't be afraid to fail. Don't be afraid to make mistakes. Failure is part of the journey. In fact, it's essential. When I started Alibaba, I failed many times. I made so many mistakes that I lost count. But I didn't give up. I didn't let fear stop me from moving forward. And you shouldn't either. If you keep your plans to yourself, you eliminate the fear of judgments. You allow yourself the freedom to experiment, to fail, to learn without the pressure of outside opinions. And in doing so, you will give yourself the best chance of success. Here's the thing: at the end of the day, nobody cares about your plans, they care about your results. You can talk all day long about what you're gonna do, but if you don't deliver, it's meaningless. That's why I always say, let success speak for itself. When Alibaba became successful, people were shocked.
They couldn't believe that small team of underdogs had built one of the largest e commerce companies in the world. But by then, it was too late for them to criticize or doubt us. The results spoke for themselves. And that's the point I want to make today. If you keep your plans to yourself, you protect your vision. You shield it from negativity, doubt, and jealousy. You give yourself the time and space to focus on what really matters: execution. When you finally achieve your goals, people will see the results. They won't need an explanation. They won't need to hear about all the plans you made. They'll see the success with their own eyes. And that's when you'll know you made the right decision by keeping quiet. So, my young friends, as you embark on your journeys, remember this: silence is your superpower. Don't waste time telling everyone your plans. Don't seek validation from people who don't understand your vision. Don't let fear drive your decision. Instead, focus on the work. Let your actions speak louder than your words. Let your success surprise those who doubted you. And most importantly, trust yourself. You have everything you need to succeed. You just need to stay focused, stay quiet, and keep pushing forward. One day, when you have achieved your dreams, people will ask you how you did it. And you will smile because you will know that the secret to success was simple. You kept your plans to yourself. Thank you. नमस्ते दोस्तों। यार एक बात बताओ, यहाँ कितने लोगों के पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि गेमिंग का मतलब टाइम वेस्ट करना है। देखा, आधे लोगों ने हाथ उठाया और आधों ने डर के मारे उठाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी साथ आई है। मेरी मम्मी को भी सेम लगता है। वो कहती है, बेटा ये गेम खेलना बंद कर, कुछ बन जा। तो मैंने कहा, मम्मी मैं बन तो गया हूँ, आईजीएल। तो मम्मी बोली, ये अब आईजीएल क्या होता है? मैंने कहा, बिना सैलरी के टीम संभालना। तो मम्मी बोलती है, तो ये तो तेरे पापा भी करते हैं। मतलब पहला रोस्ट घर से ही शुरू। सभी पेरेंट्स का ना एक यूनिवर्सल डायलॉग है, पूरा दिन फ़ोन चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, आंखें ख़राब हो जाएंगी। मैंने बोला, मम्मी आंखें ख़राब नहीं हो रही हैं, विज़न क्लियर हो रहा है। अब मैं 200 किलोमीटर दूर से एनिमी को स्पॉट कर लेता हूँ, और पड़ोस वाली आंटी को भी। पापा कहते हैं, बाहर जा, धूप ले। मैं कहता हूँ, पापा मैं बीजीआई में हूँ, एंगल में धूप भी है, लूट भी है और टेंशन फ्री है। असली धूप तो तब लगती है जब मम्मी कहती है, शर्मा जी के बेटे को देखो यूपीएससी निकाल रहा है। और मैं कहता हूँ, मम्मी मैं भी निकल रहा हूँ लास्ट जोन से। पेरेंट्स को लगता है हम कुछ नहीं सीख रहे। भाई हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने पेशेंस सीखा है। 30 मिनट लूट करो, 2 सेकंड में मर जाओ, और फिर भी प्ले अगेन दबा दो। ये पेशेंस नहीं तो क्या है? हमने टीम वर्क सीखा है। 4 अनजान लोगों के साथ बिना लड़ाई के 20 मिनट रहना, ये तो शादी की ट्रेनिंग है। मम्मी को लगता है कंप्यूटर ऑन करना मतलब हैकर बनना। एक दिन मम्मी आती है और बोली, बेटा मेरा फ़ोन स्लो चल रहा है। मैंने देखा और कहा, मम्मी स्टोरेज फुल है। मम्मी बोलती है, तो तू गेम डिलीट कर देना। मतलब मेरा फ़ोन, मेरा स्टोरेज, और ब्लेम गेम पे। एक दिन पापा को व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, गेम खेलने से बच्चे वॉयलेंट हो जाते हैं। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, वो पापा ने मुझे भेजा। मैंने कहा, पापा मैं वॉयलेंट नहीं हूँ, मैं बस फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट ने मुझे रिवाइव नहीं दिया। और ऊपर से मम्मी को तो लगता है हेडफोन लगाना मतलब दुनिया से ही मुंह मोड़ लेना। सच तो ये है कि हेडफोन्स लगाने के बाद ही दुनिया की असली आवाज़ सुनाई देती है। मम्मी चाय ले आ, पापा सब्जी ले आ, और बैकग्राउंड में एनिमी अहेड। मैं एक साथ तीनों आवाज़ें सुन लेता हूँ। अब ये मल्टीटास्किंग नहीं है तो और क्या है? हर इंडियन पेरेंट्स के पास एक मीटर होता है, शर्मा जी का बेटा मीटर। शर्मा जी का बेटा सुबह 5 बजे उठता है। मैं भी उठता हूँ जब रैंक पुश चल रहा हो। शर्मा जी का बेटा 95% लाया, मैं भी लाया। हेडशॉट एक्यूरेसी 95%, कभी कभी।
पापा कहते हैं देख वो कितना कमाता है। मैं कहता हूँ मैं भी कमा रहा हूँ। बीपी, स्ट्रेस और गालियाँ। एक दिन पापा बोले बेटा करियर का सोचना है, क्या करना है? मैंने कहा हाँ पापा, मैं स्ट्रीमर बनूंगा। तो वो बोले स्ट्रीमर मतलब? तो मैंने बताया कि लोग मुझे खेलते हुए देखेंगे। तो पापा बोलते हैं लोग तुझे पढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहते। मतलब घर में रोस्ट बैटल चल रहा है। मम्मी को लगता है हर चीज़ का सॉल्यूशन है, फ़ोन रख दे सब ठीक हो जाएगा। जैसे कि मेरे फ़ोन रखते ही मेरी रैंक कॉन्कर हो जाएगी और शर्मा जी का बेटा फेल हो जाएगा। मम्मी कहती है कि बेटा गेम में क्या रखा है? तो मैं बताता हूँ मम्मी गेम में सब कुछ रखा है, दोस्ती, धोखा, प्यार और लूट। एक बार मैं क्लच कर रहा था 1v3 सिचुएशन में। दिल तेज़ धड़क रहा था। पीछे से मम्मी आई, बेटा दही ले आ। मैंने कहा मम्मी अभी नहीं। तो मम्मी बोली गेम बाद में खेल लेना वरना दही इकट्ठा हो जाएगा। मम्मी को लगता है पॉज बटन होता है। मम्मी फिर बोली रोक देना गेम को। मैं बोला मम्मी ये ऑनलाइन है। तो मम्मी बोलती है ऑफलाइन खेल ले। मतलब लॉजिक की ऐसी तैसी। पेरेंट्स को लगता है गेमिंग से कुछ नहीं सीखा। मैं बताता हूँ क्या सीखा। बजटिंग करना। गेम में 7,000 क्रेडिट है, डिसाइड करना है गन लूँ या यूटिलिटी। रियल लाइफ में 7,000 सैलरी है, डिसाइड करना है रेंट दूँ या जोमेटो। फिर आता है कम्युनिकेशन। मैं 4 अलग एक्सेंट में एनिमी अहेड बोल सकता हूँ, ये स्किल कॉल सेंटर में काम आएगी। फिर आता है लीडरशिप। मैं बिना माइक वाले टीममेट्स को भी लीड कर लेता हूँ, ये तो मैनेजमेंट की डिग्री है। और स्ट्रेस हैंडलिंग। जब आपकी पूरी टीम मर चुकी हो और आप अकेले हो तब भी काम रहना, ये तो मेडिटेशन है। मम्मी बोलती है बहुत बोलता है तू गेम में। मैं बोलता हूँ मम्मी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कल को शादी होगी तब भी तो सुनना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स का बचपन गिल्ली डंडा, पिट्ठू, छुपम छुपाई खेल के निकला है। और हमारा बचपन भाई रिवाइव कर दे, भाई कवर दे दे। उनके टाइम में वो बाहर खेलने जाते थे तो मम्मी बुलाती थी, और हमारे टाइम पे घर में ही खेलते हैं फिर भी मम्मी बुलाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है उनको मम्मी की आवाज़ सुनाई देती थी, हमें हेडफोन के ऊपर से सुनाई देती है। पापा बोलते हैं हमारे टाइम में हम अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, और मैं बोलता हूँ पापा मैं भी मिलता हूँ डिस्कॉर्ड पे। तो पापा बोले वो असली दोस्त नहीं होते। तो मैंने कहा पापा वही असली दोस्त है जो मुझे नोक होने पे रिवाइव देते हैं, असली ज़िंदगी में कोई देता है? मम्मी को लगता है मैं अकेला हूँ। मैंने कहा मम्मी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 रैंडम टीममेट्स हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं, ये भी एक तरह का परिवार है। देखो सच ये है कि पेरेंट्स गलत नहीं है, उनको बस डर लगता है। उनको लगता है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर हम अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हैं। एक दिन मम्मी को गेम दिखाया और बोला देखो मम्मी ये मैं हूँ। तो उन्होंने कहा इतना छोटा क्यों दिख रहा है? तो मैंने कहा मम्मी ये कैरेक्टर है। मम्मी बोली तो अपना असली चेहरा दिखा। तब फिर मैंने अपना कैमरा ऑन किया। तब उन्होंने कहा हाँ अब ठीक है। आंखें लाल है पर खुश लग रहा है। बस बस वही चाहिए था। पेरेंट्स को बस यही चाहिए कि हम खुश रहें, चाहे गेम खेल के चाहे पढ़ के। तो अगली बार जब आपके पेरेंट्स बोले गेम बंद कर, तो प्यार से बोलो 5 मिनट मम्मी लास्ट सोना है। और अगर आपकी मम्मी मान जाए तो समझ जाओ कि आपकी रैंक से ज़्यादा अच्छी आपकी किस्मत है। थैंक यू भाइयों। और हाँ, घर जाके मम्मी को बोलो जी जी, वो कंफ्यूज हो जाएगी पर खुश हो जाएंगी। मिलते हैं अगले मैच में या अगले ताने में। नमस्ते गेमर्स, स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां लोग छुट्टी पर होते हैं और आपकी रैंक भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलो क्यू की। वो जगह है जहां आपको टीममेट्स नहीं सरप्राइज पैकेज मिलते हैं। आपने सोचा था आज रैंक पुश करेंगे, लेकिन गेम ने सोचा चलो आज इनका पेशेंस टेस्ट करते हैं।
आप चाहे वेलोरेंट खेलो, BGMI खेलो या फ्री फायर खेलो, दर्द सेम है, बस मैप पे अलग अलग हैं। आज की कहानी है ऐसे 5 टीममेट्स की जो आपको हर मैच में मिलते हैं। अगर आपको लगे कि आपके बारे में है, तो जी हाँ, शायद है भी। पहला नमूना, हेडशॉट गॉड। लोडिंग स्क्रीन आता ही है भाई साहब, डुअलिस्ट लॉक कर देता है, और वो भी सिर्फ 0.2 सेकंड में। आप सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या पिक करना है, और ये पहले ही जेट ले चुका है। बाय फेज में आते ही पहले ये हमेशा शेरिफ खरीदेगा। इकोनॉमी क्या होती है इसे पता ही नहीं है। टीम के पास पूरे 3800 क्रेडिट हैं और ये बोलेगा ट्रस्ट मी, 1 टैप। राउंड स्टार्ट होता है, डैश करता है, ऊपर जाता है और 3 सेकंड में ही वापस लॉबी में। और किल फीड में क्या, हेडशॉट गॉड डाइड ड्यू टू क्लासिक। अब इनसे कोई पूछो कि भाई क्या हुआ, तो ये बोलेंगे लैग हो गया यार। लाइक भाई तेरा पिंग 30 है पर ध्यान 3 है। हर राउंड में सेम ही कहानी है इसकी। एंट्री करेगा, नॉक हो जाएगा, फिर बोलेगा हील दो ना सेज। और सेज तो इसको पिछले राउंड से ही म्यूट करके बैठा है। और मैच के एंड में स्कोर 2-18-1। और चैट में लिखेगा जीजी नूब टीम। लाइक भाई तू जीजी नहीं है, पीजी है, पूरा गड़बड़। अब हमारे 5 रत्नों में से दूसरा रत्न, सेज मैन, द सेज विद स्नैक्स। ये भाई साहब वो प्लेयर है जो सेज इसलिए पिक करता है क्योंकि कैरेक्टर क्यूट है, गेम सेंस कम और केयरिंग ज़्यादा। सबको हील करना चाहता है पर बटन भूल जाता है। आप 10 HP पे हो और बोल रहे हो सेज हील, सेज हील। वो बोलता है रुको मैं चिप्स खा रहा हूँ। लाइक भाई तू हील कर रहा है या पार्टी कर रहा है? वो लगाएगा तो तुम्हें साइड से ब्लॉक कर देगा, तुम वो लगाओगे तो वॉल तुम्हारे मुंह पे, और तुम उससे बोलोगे कि भाई वॉल हटा, वो बोलेगा उप्स मिस क्लिक। मिस क्लिक नहीं, मिस प्लेस है। और अगर रिजरेक्ट करेगा तो सबसे पहले उस डुअलिस्ट को जो 0-12 चल रहा है। और क्यों? क्योंकि बेचारा ट्राई कर रहा है। भाई हम सब ट्राई कर रहे हैं, तू बस टाइम पर हील दे दे। और एक बार तो इसने हील एनिमी को ही दे दिया। एनिमी ने इसे थैंक यू भी बोला और इसने वेलकम बैक भी कर दिया। अब हमारे इन अनमोल रत्नों में से तीसरा रत्न है द साइलेंट IGL। इसका माइक ही नहीं है, और अगर है तो चलता नहीं है, पर इसको सब पता है। पूरा मैच ये पिंग करेगा, पिंग पिंग पिंग, आपका कान बच जाएगा। अगर तुम ए साइड से जा रहे हो तो ये बी पिंग करेगा, और अगर बी जाओगे तो ये मिड पिंग करेगा। भाई तू खेल रहा है या खोज करवा रहा है? कभी कभी ये चैट में लिखेगा रश बी। हम वैलोरेंट खेल रहे हैं भाई, पुराना वाला गेम नहीं। और क्लच सिचुएशन में ये सबसे ज़्यादा ज्ञान देगा। अगर आप 1v2 में हो तो ये लिखेगा लेफ्ट पे है, राइट पे है, ऊपर देख, नीचे देख, प्लांट कर, डिफ्यूज कर, शादी कर ले। भाई तू गाइड कर रहा है या कन्फ्यूजन बेच रहा है? और जब आप राउंड हार जाओगे तो ये बोलेगा आई टोल्ड यू। भाई तूने क्या बोला था, तूने तो बस पिंग किया था। अब आता है हमारे 5 प्यारों में से चौथा प्यारा, BGMI का फ़ोन गेमर। ये भाई पुराने फ़ोन पे खेल रहा है। गेम खुलते ही इसका फ़ोन हीटर बन जाता है, और माइक हमेशा ऑन रहता है। बैकग्राउंड से मम्मी की आवाज़ आती है, दूध ले आ। और ये बोलेगा रुको मम्मी, लास्ट जोन है। तुम्हें हमेशा एनिमी के फुटस्टेप से ज़्यादा इसके घर के बर्तनों की आवाज़ आएगी। इसका पिंग 300 से 900 के बीच झूलता रहता है। 1 सेकंड में ये आपके सामने है और दूसरे सेकंड में दूसरे शहर में। और नॉक हो जाएगा तो बोलेगा अरे यार टच काम नहीं कर रहा। भाई तेरा टच नहीं, तेरा लक काम नहीं कर रहा। और गाड़ी चलाते वक्त ये हमेशा पहाड़ से नीचे गिरा देगा, पूरी स्क्वाड ख़त्म। और ये बोलेगा सॉरी गाइस, स्लिप हो गया। स्लिप नहीं हुआ, तेरे हाथ स्टीयरिंग पे से स्लिप हो गए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये हमेशा लूट के लिए लड़ेगा। आपको M416 चाहिए, ये उठा लेगा और बोलेगा भाई मेरे पास एमओ नहीं है। अरे भाई फिर उठाई क्यों? अब आते हैं अपने 5वें और अंतिम नमूने पे, द ब्लेमर।
वैसे नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, ये वो बंदा है जो कभी अपनी गलती नहीं मानता। मरेगा तो बोलेगा सेज हील क्यों नहीं दिया, सेज हील दे देगा तो बोलेगा कवर क्यों नहीं दिया, कवर मिल जाएगा तो बोलेगा इन्फो क्यों नहीं दी। भाई तू पहले बस खेल ले, शिकायत बाद में कर लेना। और इसका फेवरेट डायलॉग, माई टीम इज़ बोट। भाई तो खुद प्रैक्टिस मोड से आया है, मैच हारने के बाद ये सबको रिपोर्ट करेगा और अगले मैच में फिर से आपको ही मिलेगा। और क्यों? क्योंकि मैच मेकिंग को आपसे प्यार है। तो दोस्तों, ये थी आज की हंसी भरी दास्तान। अगर आपको इनमें से कोई एक टीममेट भी रिलेटेबल लगा तो लाइक करो, और अगर आपको पांचों लगे तो आपको मेरी ढेर सारी सिंपैथी। और अगर आप खुद इनमें से एक हो तो कमेंट में मत बताना, हम समझ गए हैं। अगली बार जब आप सोलो क्यू करोगे तो याद रखना, आप गेम नहीं खेल रहे, आप एडवेंचर खेल रहे हो। मैं जा रहा हूँ दोबारा क्यू खेलने। क्यों? क्योंकि उम्मीद अभी भी ज़िंदा है। मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए म्यूट ऑल नहीं, चिल करो और बस हंसते रहो। बाय बाय। आखिर तुम कब तक दूसरों की रेस में दौड़ोगे? और अगर जीत भी गए तो क्या वो जीत तुम्हारी होगी? ये कहानी है कबीर की, जिसने जीतना छोड़कर जीना सीखा। मेरा नाम कबीर है। मैं बचपन से ही सबसे आगे वाला बच्चा था। क्लास में फर्स्ट आना, रेस में फर्स्ट आना, सबसे ज़्यादा लाइक्स लेना। मेरे पापा कहते थे, बेटा दुनिया सिर्फ विनर्स को याद रखती है। मैंने ये बात दिल पर ले ली थी। मैंने हर चीज़ को कंपटीशन बना दिया था। दोस्त ने नई बाइक ली तो मुझे कार चाहिए। कज़न की जॉब लगी, मुझे उससे बड़े पैकेज वाली चाहिए। किसी ने ट्रिप की फ़ोटो डाली, मुझे उससे बेहतर लोकेशन चाहिए। मैं लगातार दौड़ रहा था, पर मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऊपर से तो मैं खुश दिखता था, मगर अंदर से मैं थका हुआ था। फिर एक दिन सब बदल गया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जिससे मैं हमेशा कंपेयर करता था, उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया और 6 महीने में फंडिंग उठा ली। न्यूज़ में नाम आया। सब ने कहा, वाह आदित्य। मैंने मुस्कुराकर बधाई दी। घर आकर मैं टूट गया। जलन, गुस्सा, शर्म और पता नहीं क्या क्या। मैं खुद से नफरत करने लगा। मेरे मन में यही चलता था कि तू नाकाम है, तू पीछे रह गया, तू कुछ नहीं कर सकता। उस रात मैंने पहली बार सच बोला। मैं आदित्य से नहीं, मैं खुद से हार गया था। मैंने अगले दिन जिम जाना छोड़ दिया। ऑफिस में मन नहीं लगा। मैं बस स्क्रॉल करता रहता था, सबकी सक्सेस देखकर जलता रहता था। एक शाम मुझे पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे? और बस मैं फट पड़ा और मैंने बोला, मैं थक गया हूँ पापा। मैं हमेशा भाग रहा हूँ पर पहुँच नहीं रहा। पापा चुप रहे और फिर बोले, कबीर तू रेस तो दौड़ रहा है, लेकिन तेरी रेस ये है ही नहीं। उस लाइन ने मुझे हिला दिया। और फिर पहली बार मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। जवाब नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं था। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली, फ़ोन बंद किया और मैं अपने नाना के गांव चला गया। वहाँ कोई वाईफाई नहीं था, ना ही कोई कंपटीशन था। सुबह नाना के साथ खेत जाता, दोपहर में किताब पढ़ता और शाम को नदी किनारे बैठता। तीसरे दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं कहानियाँ लिखना चाहता हूँ। मैं बचपन में लिखता था, पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें स्कोप नहीं था। मैंने गांव में ही लिखना शुरू किया। कोई एडिटर नहीं, कोई लाइक्स नहीं, बस मैं और कागज़। मैं एक हफ्ते बाद शहर लौटा, पर मैं वही कबीर नहीं था। मैंने एक नियम बनाया जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना चाहता। मैंने सोशल मीडिया से उन अकाउंट्स को अनफॉलो किया जो मुझे ट्रिगर करते थे, और मैंने अपने दोस्तों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना शुरू किया, बिना खुद को छोटा महसूस किए। यह मेरे लिए आसान नहीं था। पुरानी आदत लौटती थी। कोई प्रमोशन पाता तो पेट में अजीब सा महसूस होता था। तब मैं खुद से कहता, उसकी अलग रेस है और मेरी अलग। मैंने अपनी प्रगति को ट्रैक करना शुरू किया। हर रविवार मैं लिखता, इस हफ्ते मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूँ। बस इतना ही।
मैंने ईगो को साइड में रखकर सीखना शुरू किया। मैंने आदित्य को कॉल किया और बोला, भाई मुझे तुझसे जलन होती थी, सॉरी, मुझे बता तूने कैसे शुरू किया। वो हंसा और बोला, मुझे पता था, चल कॉफ़ी पीते हैं। उस दिन मैंने एक मेंटोर पाया और एक दुश्मन खोया जो मैंने खुद बनाया था। मैंने लिखना जारी रखा, एक ब्लॉग शुरू किया। पहले महीने 50 लोग पढ़े, मैं खुश था क्योंकि ये मेरे 50 हैं। 6 महीने बाद एक पब्लिशर ने मेरा आर्टिकल पढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ सच्ची है। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, पर वो नौकरी मुझे बोझ नहीं लगती थी, वो मुझे लिखने की आज़ादी देती थी। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मैं अब शांत हूँ। पहले मैं हमेशा साबित करने में लगा रहता था, पर अब मैं जीने लगा था। मैंने समझा कंपटीशन तो बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर कल वाला तुम हो। और ईगो तुम्हें तेज़ दौड़ाता है, पर गलत दिशा में। एक दिन मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया मैं अपने दोस्त से पीछे रह गया हूँ। मैंने कहा, तू पीछे नहीं है, तू बस अपनी लेन में नहीं है। लोगों को देखना बंद कर, खुद को देखना शुरू कर। जीतना ज़रूरी नहीं है, बढ़ना ज़रूरी है। और याद रख, जो रेस तेरी नहीं है उसे जीत कर भी तू हार ही जाएगा। कबीर आज भी लिखता है, कभी कभी मन करता है कंपेयर करने का, तो वो मुस्करा देता है और कहता है फिर से नहीं, क्योंकि उसने रेस छोड़ दी है और अब वो सफ़र पर है। तुम्हारी सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम दूसरों की रेस दौड़ने लगते हो। तुलना ईगो का खाना है और ईगो तुम्हें कभी भरने नहीं देता। अपनी लेन चुनो, अपनी गति चुनो, रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनो, क्योंकि असली जीत ट्रॉफी में नहीं, शांति में है। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो आज एक नाम लिखो जिससे तुम कंपेयर करते हो और उसे ब्लेस करके छोड़ दो और अपनी रेस शुरू करो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि पूरी ज़िंदगी तुम दूसरों की उम्मीदों में ही जी रहे हो? वही सुबह उठते हो, वही काम, वही डर, वही एक बात कि कल से शुरू करूँगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सिर्फ एक छोटा सा फैसला तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है, तो क्या तुम सुनोगे? यह कहानी तुम्हारे लिए है। मेरा नाम आरव है। मैं किसी खास परिवार में पैदा नहीं हुआ था। न मेरे पास कोई नक्शा था, ना कोई गाइड। बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अंदर कोई धीमी आवाज़ में बोल रहा है, तू इसके लिए नहीं बना। बचपन में बहुत सपने देखता था। मैं कहता था कि मैं लेखक बनूंगा, अपना काम करूंगा, दुनिया घूमूंगा। लेकिन लोग हंसते थे, टीचर कहते थे व्यवहारिक बनो, पापा कहते थे सुरक्षित नौकरी लो। धीरे धीरे मैंने सपने देखना बंद कर दिया था। मैंने वो रास्ता चुना जो आसान दिखता था। एक ठीक ठाक कॉलेज, एक ठीक ठाक नौकरी, सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम को 6 बजे घर। सैलरी आती थी, बिल भरते थे, वीकेंड पर दोस्तों के साथ फ़ोटो डालते थे। बाहर से सब परफेक्ट लगता था, पर अंदर से खाली। रात को जब मैं छत पर अकेला बैठता था तो लगता था जैसे कि मैं अपनी ही ज़िंदगी में मेहमान हूँ। मैं जी नहीं रहा था, मैं बस दिन काट रहा था। फिर एक सुबह कुछ अलग हुआ। अलार्म बजा, मैं उठा और पहली बार मैंने खुद से पूछा, मैं कब तक ऐसे ही जीऊँगा। उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। मैं एक पुरानी डायरी लेकर बैठ गया। मैंने एक पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं लिखना शुरू करूँगा, रोज़ 30 मिनट। बस इतना ही, कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई परफेक्शन नहीं। पहला दिन अजीब था, ना खाली रहा, शब्द नहीं आए। मैंने सिर्फ तारीख लिखी और बंद कर दी। दूसरा दिन 2 लाइन लिखी। तीसरा दिन आधा पन्ना। मैं परफेक्ट नहीं था, पर मैं लगातार था। कुछ दिनों बाद शक आने लगा, इससे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तू लेखक नहीं बन सकता।
दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे वाह, अब कवि बन गया। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हुए, मुझे बुरा लगा। फिर समझ आया, हर कोई तुम्हारे सफ़र में साथ नहीं रह सकता। कुछ लोग सिर्फ एक स्टेशन तक ही होते हैं। मैं चलता रहा। धीरे धीरे एक बात समझ आई कि धीमी प्रगति भी प्रगति होती है। मैंने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। मैं अपनी कल वाली खुद से तुलना करने लगा। आज मैं कल से 1% बेहतर हूँ, बस यही काफ़ी है। असफलता भी आई। मैंने एक छोटी सी कहानी एक मैगज़ीन को भेजी, रिजेक्ट हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। पहले मैं टूट जाता, अब मैं सीखता। हर रिजेक्शन मुझे बताती थी कि कहाँ सुधार करना है। असफलता दुश्मन नहीं, टीचर थी। 6 महीने बीत गए। अनुशासन मेरी ताकत बन गया। थका हुआ दिन हो, मन ना हो, कोई तारीफ ना करे, मैं फिर भी लिखता, क्योंकि मैंने वादा खुद से किया था, दुनिया से नहीं। और फिर चीज़ें बदलने लगी। मेरे शब्दों में वज़न आया, आत्मविश्वास आया। एक लोकल कैफ़े ने मुझे अपने इवेंट में पढ़ने के लिए बुलाया। 10 लोग आए। मैंने कांपते हाथों से पढ़ा, लेकिन पढ़ा। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था जो एक छोटी पब्लिशिंग हाउस चलाता था। उसने कहा, तुम में सच्चाई है। वही मौका था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। पर सच कहूँ, मौका मुझे नहीं मिला, मैंने उसे तैयार किया था। किस्मत उन्हीं को मिलती है जो तैयार होते हैं। मैंने इजाज़त मांगना बंद कर दिया, ना माँ बाप से ना समाज से। मैंने खुद को इजाज़त दी थी, शुरू करने की, गिरने की, बेवकूफ़ दिखने की। मेरे अंदर की आवाज़ बदल गई। पहले वो कहती थी मैं नहीं कर सकता, अब वो कहती है मैं सीख सकता हूँ। पहले सवाल था अगर मैं फ़ेल हो गया तो, लेकिन अब सवाल है अगर मैं उड़ गया तो। मैंने अपनी संगत बदली, किताबें, पॉडकास्ट, वो लोग जो मुझे ऊपर खींचते थे। मैंने अपनी ऊर्जा बचानी सीखी। हर बहस में नहीं कूदता, हर राय नहीं सुनता। और मैंने आराम करना सीखा। पहले मैं थक कर छोड़ देता था, अब मैं थक कर आराम करता हूँ। आराम करना छोड़ना नहीं है, ये काम का हिस्सा है। 1 साल बाद जब मैंने पुरानी तस्वीरें देखी तो मैं खुद को पहचान नहीं पाया। शक्ल से नहीं, सोच से। मैं परफेक्ट नहीं था, पर मुझे खुद पर गर्व था। मैंने इरादों से ज़िंदगी बनाई थी। फिर एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, आँखों में वही खालीपन जो कभी मेरी आँखों में था। उसने कहा, भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं मुस्कुराया, क्योंकि रोशनी बांटने के लिए होती है। मैंने उसे वही कहा जो काश किसी ने मुझसे कहा होता, तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं देखनी है, बस अगला कदम देखो। तुम लेट नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम बन रहे हो। चलते रहो, चाहे धीरे ही क्यों ना हो। तुम्हारा भविष्य वाला तुम्हें देख रहा है, उसे गर्व महसूस करवाओ। सपना कभी बड़ा नहीं था, बस तुम्हें उसके लायक बनना था, और तुम बन जाओगे। आरव आज भी लिखता है, पूरे 30 मिनट, कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी कम, लेकिन रोज़ लिखता है। क्योंकि उसने खुद से एक सुबह वादा किया था, और वो वादा उसने निभाया है। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, एक फैसले से आता है। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं, निरंतरता की ज़रूरत है। तुम जब खुद को इजाज़त दे देते हो शुरू करने की, तब दुनिया रास्ता देने लगती है। तुम्हारे अंदर पहले से ही वो रोशनी है, बस पहली किरण बाहर आने दो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो आज एक छोटा सा कदम उठाओ। एक पन्ना लिखो, एक फ़ोन कॉल करो, एक वॉक पर जाओ। कमेंट में लिखो कि तुम आज क्या शुरू कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग दैट many of you might be doing without even realizing its potential harm. It's a habit of telling everyone your plan. Yes, I'm serious. Many people love to announce every single idea they have, every business plan, every dream
to anyone who would listen. Some of you probably do it on social media, right? Hey guys, I'm starting new business. Wish me luck. Or I'm planning to do this, do that. But listen carefully, my young friends. Don't tell everyone your plans. Today, I'm going to explain why. You see, when I was younger, I made the same mistake. I was so excited about my ideas that I couldn't wait to tell everyone. I would sit down with my friends and we'd talk for hours about what we would do. We would talk about starting companies, changing the world, and becoming billionaire. Oh, how fun it was to dream. But then I noticed something. Every time I talked about my plans, things didn't go as well as I hoped. The reason? Too many opinions. When you tell everyone your plans, what happens? Everyone start giving you advice. Advice from people who have never done what you are trying to do. Advice from people who are scared of taking risks themselves. Advice from people who, let's be honest, sometimes don't even want to see you succeed. It's like inviting 100 chefs into your kitchen to make a single dish. Too many cooks spoil the broth, my friends. Too many voices confuse your direction. And then there's another problem. When you speak too much about your plans, you use up all the excitement in talking, not doing. Think about it. When you tell someone your big idea, they might say, "Wow, that sounds amazing." And for a moment, it feels like you have already succeeded. You feel good. But the problem is that feeling of accomplishment you get from talking replaces the drive you actually do it. Instead of spending energy on execution, you spend it on conversations. Instead of working quality, you are busy seeking validations. My advice: keep quiet. Let your actions do the talking. Now, some of you might be thinking, but Jack, what's wrong with the sharing my ideas? Shouldn't I ask for feedback? Shouldn't I get advice from people who care about me? Well, here's when things get tricky. Of course, you should seek guidance, but not from everyone. You see, not all advices are good advice. Let me give you an example. When I started Alibaba, nobody believed in us. People thought I was crazy. An e commerce business in China? Are you serious? The internet is for Western countries, Jack, not China. I remember one of my teachers telling me, "Jack, maybe you should stick to teachings. Business is too risky." If I had listened to them, if I had shared my full vision with everyone and allowed them to plant doubts in my mind, do you think Alibaba would exist today? Of course not. Sometimes the people closest to you are the ones who unknowingly hold you back. Not because they don't love you, but because they don't see what you see. Your vision is your vision. It's personal. It's unique. They haven't walked in your shoes. They haven't experienced your thoughts, your dreams, your aspirations. So how can they truly understand what you are trying to achieve? That's why I said don't tell everyone your plans. Not everyone is ready to hear them. Not everyone is ready to believe in you the way you believe in yourself. And most importantly, not everyone is capable of giving you the right kind of advice. It's like planting a seed. You don't pull the seed out every day to show everyone what you are growing. No, you leave it in the soil, you water it, you take care of it. And one day it becomes a tree. Then and only then can people see the results of your hard work. When you are quiet about your plans, something magical happens. You become more focused, you stop worrying about other things, and you start focusing on the work itself. That's when real progress happens. Let me share a funny story with you. When I first started building Alibaba, there was a lot of noise. Everyone was talking about the dot-com bubble, about how e-commerce would never work in China. I remember attending business meetings and people would say, "Jack, you are wasting your time. Nobody in China wants to buy things online. We prefer to go to the markets, touch the products, bargain for the price." But what did I do? Did I go around arguing with them?
trying to convince them they were wrong? No, I kept my mouth shut and worked hard. I kept my vision close to my heart and focused on building something amazing. We were a small team, working day and night, eating instant noodles, sleeping in the office. We didn't have time to talk. We busy working. And guess what? When Alibaba finally took off, everyone was shocked. How did this happen? They asked, and I smiled. I told you so, I thought, but I didn't say it out loud. Of course, that's the beauty of quiet execution. You surprise people with results, not words. Now let's talk about something else. Jealousy. This is a hard truth. But not everyone will be happy for you when you succeed. In fact, some people will be envious. They might smile your face, but deep down they don't want you to win. And you know what? When you tell these kinds of people your plans, they can sabotage you, sometimes without even realizing it. I'm sure many of you experience this. You tell someone your dream, and instead of supporting you, they say things like, "Are you sure? That sounds so risky." Or, "Do you think you're really capable of doing that?" Their doubts start to creep into your mind. You begin questioning yourself, and before you know it, you have lost confidence in your own ability. That's what jealousy does. It's subtle, it's sneaky, and it can destroy your dreams before they even start. So, what's the solution? Simple. Don't give people the opportunity to be jealous. Keep your plans to yourself. Let them find out your success when it's too late to stop you. Now, don't get me wrong. I'm not saying you should never tell anyone your plans. Of course, there are times when you need advice, when you need feedback, when you need to bounce ideas off someone else. But here's the key: be selective. Don't share your plans with people who don't understand your vision. Don't share them with people who are negative or pessimists. Instead, find a small group of trusted individuals, people who believe in you, people who have experience, people who can offer constructive criticism. In my case, I had a few close friends and mentors who supported me during the early days of Alibaba. They didn't always understand what I was doing, but they believed in my ability to figure it out. They encouraged me to keep going, even when things got tough. And let me tell you, things got really tough. There were times when we had no money, no resource, no hope. But because I surrounded myself with the right people, I was able to push through the challenges. I didn't need 100 opinions. I just need a few good ones. Let's address another issue: fear. Sometimes we tell everyone our plans because we are afraid of failing, afraid of looking foolish, afraid of making mistakes. We think that by telling others, we're somehow protecting ourselves. We think that if we announce our plans to the world, we'll be held accountable and therefore more likely to succeed. But here's the truth: fear is a terrible motivator. If you are making decisions out of fear, you are not thinking clearly. You are not acting from a place of confidence. Instead, you are letting other people's opinion control your actions. Don't be afraid to fail. Don't be afraid to make mistakes. Failure is part of the journey. In fact, it's essential. When I started Alibaba, I failed many times. I made so many mistakes that I lost count. But I didn't give up. I didn't let fear stop me from moving forward. And you shouldn't either. If you keep your plans to yourself, you eliminate the fear of judgments. You allow yourself the freedom to experiment, to fail, to learn without the pressure of outside opinions. And in doing so, you will give yourself the best chance of success. Here's the thing: at the end of the day, nobody cares about your plans, they care about your results. You can talk all day long about what you're gonna do, but if you don't deliver, it's meaningless. That's why I always say, let success speak for itself. When Alibaba became successful, people were shocked. They couldn't believe that small team of underdogs had built one of the largest e-commerce companies in the world. But by then,
It was too late for them to criticize or doubt us. The results spoke for themselves. And that's the point I want to make today. If you keep your plans to yourself, you protect your vision. You shield it from negativity, doubt, and jealousy. You give yourself the time and space to focus on what really matters: execution. When you finally achieve your goals, people will see the results. They won't need an explanation. They won't need to hear about all the plans you made. They'll see the success with their own eyes. And that's when you'll know you made the right decision by keeping quiet. So, my young friends, as you embark on your journeys, remember this: silence is your superpower. Don't waste time telling everyone your plans. Don't seek validation from people who don't understand your vision. Don't let fear drive your decision. Instead, focus on the work. Let your actions speak louder than your words. Let your success surprise those who doubted you. And most importantly, trust yourself. You have everything you need to succeed. You just need to stay focused, stay quiet, and keep pushing forward. One day, when you have achieved your dreams, people will ask you how you did it. And you will smile because you will know that the secret to success was simple. You kept your plans to yourself. Thank you. नमस्ते दोस्तों। यार एक बात बताओ, यहाँ कितने लोगों के पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि गेमिंग का मतलब टाइम वेस्ट करना है? देखा, आधे लोगों ने हाथ उठाया और आधों ने डर के मारे उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी साथ आई है। मेरी मम्मी को भी सेम लगता है। वो कहती है, बेटा ये गेम खेलना बंद कर, कुछ बन जा। तो मैंने कहा, मम्मी मैं बन तो गया हूँ, IGL। तो मम्मी बोली, ये अब IGL क्या होता है? मैंने कहा, बिना सैलरी के टीम संभालना। तो मम्मी बोलती है, तो ये तो तेरे पापा भी करते हैं। मतलब पहला रोस्ट घर से ही शुरू। सभी पेरेंट्स का ना एक यूनिवर्सल डायलॉग है, पूरा दिन फ़ोन चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, आंखें ख़राब हो जाएंगी। मैंने बोला, मम्मी आंखें ख़राब नहीं हो रही हैं, विज़न क्लियर हो रहा है। अब मैं 200 किलोमीटर दूर से एनिमी को स्पॉट कर लेता हूँ, और पड़ोस वाली आंटी को भी। पापा कहते हैं, बाहर जा, धूप ले। मैं कहता हूँ, पापा मैं BGI में हूँ, एंगल में धूप भी है, लोट भी है और टेंशन फ्री है। असली धूप तो तब लगती है जब मम्मी कहती है, शर्मा जी के बेटे को देखो UPSC निकाल रहा है। और मैं कहता हूँ, मम्मी मैं भी निकल रहा हूँ लास्ट जोन से। पेरेंट्स को लगता है हम कुछ नहीं सीख रहे। भाई हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने पेशेंस सीखा है। 30 मिनट लूट करो, 2 सेकंड में मर जाओ, और फिर भी प्ले अगेन दबा दो। ये पेशेंस नहीं तो क्या है? हमने टीम वर्क सीखा है, 4 अनजान लोगों के साथ बिना लड़ाई के 20 मिनट रहना। ये तो शादी की ट्रेनिंग है। मम्मी को लगता है कंप्यूटर ऑन करना मतलब हैकर बनना। एक दिन मम्मी आती है और बोली, बेटा मेरा फ़ोन स्लो चल रहा है। मैंने देखा और कहा, मम्मी स्टोरेज फुल है। मम्मी बोलती है, तो तू गेम डिलीट कर देना। मतलब मेरा फ़ोन, मेरा स्टोरेज, और ब्लेम गेम पे। एक दिन पापा को व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, गेम खेलने से बच्चे वॉयलेंट हो जाते हैं। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, वो पापा ने मुझे भेजा। मैंने कहा, पापा मैं वॉयलेंट नहीं हूँ, मैं बस फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट ने मुझे रिवाइव नहीं दिया। और ऊपर से मम्मी को तो लगता है हेडफोन लगाना मतलब दुनिया से ही मुंह मोड़ लेना। सच तो ये है कि हेडफोन्स लगाने के बाद ही दुनिया की असली आवाज़ सुनाई देती है। मम्मी चाय ले आ, पापा सब्जी ले आ, और बैकग्राउंड में एनिमी अहेड। मैं एक साथ तीनों आवाज़ें सुन लेता हूँ। अब ये मल्टीटास्किंग नहीं है तो और क्या है? हर इंडियन पेरेंट्स के पास एक मीटर होता है, शर्मा जी का बेटा मीटर। शर्मा जी का बेटा सुबह 5 बजे उठता है। मैं भी उठता हूँ जब रैंक पुश चल रहा हो। शर्मा जी का बेटा 95% लाया, मैं भी लाया। हेडशॉट एक्यूरेसी 95% कभी कभी। पापा कहते हैं, देख वो कितना कमाता है। मैं कहता हूँ, मैं भी कमा रहा हूँ।
बीपी, स्ट्रेस और गालियाँ। एक दिन पापा बोले, बेटा करियर का सोचना है, क्या करना है? मैंने कहा, हाँ पापा, मैं स्ट्रीमर बनूंगा। तो वो बोले, स्ट्रीमर मतलब? तो मैंने बताया कि लोग मुझे खेलते हुए देखेंगे। तो पापा बोलते हैं, लोग तुझे पढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहते। मतलब घर में रोस्ट बैटल चल रहा है। मम्मी को लगता है हर चीज़ का सॉल्यूशन है, फ़ोन रख दे सब ठीक हो जाएगा। जैसे कि मेरे फ़ोन रखते ही मेरी रैंक कॉन्कर हो जाएगी और शर्मा जी का बेटा फेल हो जाएगा। मम्मी कहती है कि बेटा गेम में क्या रखा है? तो मैं बताता हूँ, मम्मी गेम में सब कुछ रखा है, दोस्ती, धोखा, प्यार और लूट। एक बार मैं क्लच कर रहा था 1v3 सिचुएशन में, दिल तेज़ धड़क रहा था। पीछे से मम्मी आई, बेटा दही ले आ। मैंने कहा, मम्मी अभी नहीं। तो मम्मी बोली, गेम बाद में खेल लेना वरना दही खट्टा हो जाएगा। मम्मी को लगता है पॉज बटन होता है। मम्मी फिर बोली, रोक देना गेम को। मैं बोला, मम्मी ये ऑनलाइन है। तो मम्मी बोलती है, ऑफलाइन खेल ले। मतलब लॉजिक की ऐसी तैसी। पेरेंट्स को लगता है गेमिंग से कुछ नहीं सीखा। मैं बताता हूँ क्या सीखा। बजटिंग करना, गेम में 7,000 क्रेडिट है, डिसाइड करना है गन लूँ या यूटिलिटी। रियल लाइफ में 7,000 सैलरी है, डिसाइड करना है रेंट दूँ या जोमेटो। फिर आता है कम्युनिकेशन, मैं 4 अलग एक्सेंट में एनिमी अहेड बोल सकता हूँ, ये स्किल कॉल सेंटर में काम आएगी। फिर आता है लीडरशिप, मैं बिना माइक वाले टीममेट्स को भी लीड कर लेता हूँ, ये तो मैनेजमेंट की डिग्री है। और स्ट्रेस हैंडलिंग, जब आपकी पूरी टीम मर चुकी हो और आप अकेले हो तब भी काम रहना, ये तो मेडिटेशन है। मम्मी बोलती है, बहुत बोलता है तू गेम में। मैं बोलता हूँ, मम्मी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कल को शादी होगी तब भी तो सुनना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स का बचपन गिल्ली डंडा, पिट्ठू, छुपम छुपाई खेल के निकला है। और हमारा बचपन, भाई रिवाई कर दे, भाई कवर दे दे। उनके टाइम में वो बाहर खेलने जाते थे तो मम्मी बुलाती थी, और हमारे टाइम पे घर में ही खेलते हैं फिर भी मम्मी बुलाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, उनको मम्मी की आवाज़ सुनाई देती थी, हमें हेडफोन के ऊपर से सुनाई देती है। पापा बोलते हैं, हमारे टाइम में हम अपने दोस्तों से मिलने जाते थे। और मैं बोलता हूँ, पापा मैं भी मिलता हूँ डिस्कॉर्ड पे। तो पापा बोले, वो असली दोस्त नहीं होते। तो मैंने कहा, पापा वही असली दोस्त है जो मुझे नोक होने पे रिवाइव देते हैं, असली ज़िंदगी में कोई देता है? मम्मी को लगता है मैं अकेला हूँ। मैंने कहा, मम्मी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 रैंडम टीममेट्स हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं, ये भी एक तरह का परिवार है। देखो सच ये है कि पेरेंट्स गलत नहीं है, उनको बस डर लगता है। उनको लगता है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर हम अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हैं। एक दिन मम्मी को गेम दिखाया और बोला, देखो मम्मी ये मैं हूँ। तो उन्होंने कहा, इतना छोटा क्यों दिख रहा है? तो मैंने कहा, मम्मी ये कैरेक्टर है। मम्मी बोली, तो अपना असली चेहरा दिखा। तब फिर मैंने अपना कैमरा ऑन किया। तब उन्होंने कहा, हाँ अब ठीक है, आंखें लाल है पर खुश लग रहा है। बस बस वही चाहिए था। पेरेंट्स को बस यही चाहिए कि हम खुश रहें, चाहे गेम खेल के चाहे पढ़ के। तो अगली बार जब आपके पेरेंट्स बोले गेम बंद कर, तो प्यार से बोलो, 5 मिनट मम्मी लास्ट सोना है। और अगर आपकी मम्मी मान जाए तो समझ जाओ कि आपकी रैंक से ज़्यादा अच्छी आपकी किस्मत है। थैंक यू भाइयों। और हाँ, घर जाके मम्मी को बोलो जी जी, वो कंफ्यूज हो जाएगी पर खुश हो जाएंगी। मिलते हैं अगले मैच में या अगले ताने में। नमस्ते गेमर्स, स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां लोग छुट्टी पर होते हैं और आपकी रैंक भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलो क्यू की। वो जगह है जहां आपको टीममेट्स नहीं, सरप्राइज पैकेज मिलते हैं। आपने सोचा था आज रैंक पुश करेंगे, लेकिन गेम ने सोचा चलो आज इनका पेशेंस टेस्ट करते हैं। आप चाहे वेलोरेंट खेलो, BGMI खेलो या फ्री फायर खेलो,
दर्द सेम है, बस मैप पे अलग अलग हैं। आज की कहानी है ऐसे 5 टीममेट्स की जो आपको हर मैच में मिलते हैं। अगर आपको लगे कि ये आपके बारे में है तो जी हाँ, शायद है भी। पहला नमूना, हेडशॉट गॉड। लोडिंग स्क्रीन आता ही है भाई साहब, डुअलिस्ट लॉक कर देता है, और वो भी सिर्फ 0.2 सेकंड में। आप सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या पिक करना है, और ये पहले ही जेट ले चुका है। बाय फेज में आते ही पहले ये हमेशा शेरिफ खरीदेगा। इकोनॉमी क्या होती है इसे पता ही नहीं है। टीम के पास पूरे 3800 क्रेडिट हैं और ये बोलेगा ट्रस्ट मी, वन टैप। राउंड स्टार्ट होता है, डैश करता है, ऊपर जाता है और 3 सेकंड में ही वापस लॉबी में। और किल फीड में क्या, हेडशॉट गॉट डाइड ड्यू टू क्लासिक। अब इनसे कोई पूछो कि भाई क्या हुआ तो ये बोलेंगे लैग हो गया यार। लाइक भाई तेरा पिंग 30 है पर ध्यान 3 है। हर राउंड में सेम ही कहानी है इसकी। एंट्री करेगा, नॉक हो जाएगा, फिर बोलेगा हील दो ना सेज। और सेज तो इसको पिछले राउंड से ही म्यूट करके बैठा है। और मैच के एंड में स्कोर 2-18-1। और चैट में लिखेगा जीजी नूब टीम। लाइक भाई तू जीजी नहीं है, पीजी है, पूरा गड़बड़। अब हमारे 5 रत्नों में से दूसरा रत्न, सेज मैन, द सेज विद स्नैक्स। ये भाई साहब वो प्लेयर है जो सेज इसलिए पिक करता है क्योंकि कैरेक्टर क्यूट है, गेम सेंस कम और केयरिंग ज़्यादा। सबको हील करना चाहता है पर बटन भूल जाता है। आप 10 HP पे हो और बोल रहे हो सेज हील, सेज हील। वो बोलता है रुको मैं चिप्स खा रहा हूँ। लाइक भाई तू हील कर रहा है या पार्टी कर रहा है? वो लगाएगा तो तुम्हें साइड से ब्लॉक कर देगा, तुम वो लगाओगे तो वॉल तुम्हारे मुंह पे, और तुम उससे बोलोगे कि भाई वॉल हटा, वो बोलेगा उप्स मिस क्लिक। मिस क्लिक नहीं, मिस प्लेस है। और अगर रिजरेक्ट करेगा तो सबसे पहले उस डुअलिस्ट को जो 0-12 चल रहा है। और क्यों? क्योंकि बेचारा ट्राई कर रहा है। भाई हम सब ट्राई कर रहे हैं, तू बस टाइम पर हील दे दे। और एक बार तो इसने हील एनिमी को ही दे दिया। एनिमी ने इसे थैंक यू भी बोला और इसने वेलकम बैक भी कर दिया। अब हमारे इन अनमोल रत्नों में से तीसरा रत्न है द साइलेंट IGL। इसका माइक ही नहीं है, और अगर है तो चलता नहीं है, पर इसको सब पता है। पूरा मैच ये पिंग करेगा, पिंग पिंग पिंग, आपका कान बच जाएगा। अगर तुम्हें ए साइड से जा रहा है तो ये बी पिंग करेगा, और अगर बी जाओगे तो ये मिड पिंग करेगा। भाई तू खेल रहा है या खोज करवा रहा है? कभी कभी ये चैट में लिखेगा रश बी, हम वैलोरेंट खेल रहे हैं भाई, पुराना वाला गेम नहीं। और क्लच सिचुएशन में ये सबसे ज़्यादा ज्ञान देगा। अगर आप 1v2 में हो तो ये लिखेगा लेफ्ट पे है, राइट पे है, ऊपर देख, नीचे देख, प्लांट कर, डिफ्यूज कर, शादी कर ले। भाई तो गाइड कर रहा है या कन्फ्यूजन बेच रहा है? और जब आप राउंड हार जाओगे तो ये बोलेगा आई टोल्ड यू। भाई तूने क्या बोला था, तूने तो बस पिंग किया था। अब आता है हमारे 5 प्यारों में से चौथा प्यारा, BGMI का फ़ोन गेमर। ये भाई पुराने फ़ोन पे खेल रहा है। गेम खुलते ही इसका फ़ोन हीटर बन जाता है, और माइक हमेशा ऑन रहता है। बैकग्राउंड से मम्मी की आवाज़ आती है, दूध ले आ। और ये बोलेगा रुको मम्मी, लास्ट जोन है। तुम्हें हमेशा एनिमी के फुटस्टेप से ज़्यादा इसके घर के बर्तनों की आवाज़ आएगी। इसका पिंग 300 से 900 के बीच झूलता रहता है। एक सेकंड में ये आपके सामने और दूसरे सेकंड में दूसरे शहर में। और नॉक हो जाएगा तो बोलेगा अरे यार टच काम नहीं कर रहा। भाई तेरा टच नहीं, तेरा लक काम नहीं कर रहा। और गाड़ी चलाते वक्त ये हमेशा पहाड़ से नीचे गिरा देगा, पूरी स्क्वाड ख़त्म। और ये बोलेगा सॉरी गाइस, स्लिप हो गया। स्लिप नहीं हुआ, तेरे हाथ स्टीयरिंग पे से स्लिप हो गए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये हमेशा लूट के लिए लड़ेगा। आपको M416 चाहिए, ये उठा लेगा और बोलेगा भाई मेरे पास एमओ नहीं है। अरे भाई फिर उठाई क्यों? अब आते हैं अपने 5वें और अंतिम नमूने पे, द ब्लेमर। वैसे नाम से तो आप समझ ही गए होंगे,
ये वो बंदा है जो कभी अपनी गलती नहीं मानता। मरेगा तो बोलेगा सेज हील क्यों नहीं दिया, सेज हील दे देगा तो बोलेगा कवर क्यों नहीं दिया, कवर मिल जाएगा तो बोलेगा इन्फो क्यों नहीं दी। भाई तू पहले बस खेल ले, शिकायत बाद में कर लेना। और इसका फेवरेट डायलॉग, माई टीम इज़ बोट। भाई तो खुद प्रैक्टिस मोड से आया है, मैच हारने के बाद ये सबको रिपोर्ट करेगा और अगले मैच में फिर से आपको ही मिलेगा। और क्यों? क्योंकि मैच मेकिंग को आपसे प्यार है। तो दोस्तों ये थी आज की हंसी भरी दास्तान। अगर आपको इनमें से कोई एक टीममेट भी रिलेटेबल लगा तो लाइक करो, और अगर आपको पांचों लगे तो आपको मेरी ढेर सारी सिंपैथी। और अगर आप खुद इनमें से एक हो तो कमेंट में मत बताना, हम समझ गए हैं। अगली बार जब आप सोलो क्यू करोगे तो याद रखना, आप गेम नहीं खेल रहे, आप एडवेंचर खेल रहे हो। मैं जा रहा हूँ दोबारा क्यू खेलने। क्यों? क्योंकि उम्मीद अभी भी ज़िंदा है। मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए म्यूट ऑल नहीं, चिल करो और बस हंसते रहो। बाय बाय। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि पूरी ज़िंदगी तुम दूसरों की उम्मीदों में ही जी रहे हो? वही सुबह उठते हो, वही काम, वही डर, वही एक बात कि कल से शुरू करूँगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सिर्फ एक छोटा सा फैसला तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है, तो क्या तुम सुनोगे? यह कहानी तुम्हारे लिए है। मेरा नाम आरव है। मैं किसी खास परिवार में पैदा नहीं हुआ था। न मेरे पास कोई नक्शा था, ना कोई गाइड। बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अंदर कोई धीमी आवाज़ में बोल रहा है, तू इसके लिए नहीं बना। बचपन में बहुत सपने देखता था। मैं कहता था कि मैं लेखक बनूंगा, अपना काम करूंगा, दुनिया घूमूंगा। लेकिन लोग हंसते थे, टीचर कहते थे व्यवहारिक बनो, पापा कहते थे सुरक्षित नौकरी लो। धीरे धीरे मैंने सपने देखना बंद कर दिया था। मैंने वो रास्ता चुना जो आसान दिखता था। एक ठीक ठाक कॉलेज, एक ठीक ठाक नौकरी, सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम को 6 बजे घर। सैलरी आती थी, बिल भरते थे, वीकेंड पर दोस्तों के साथ फ़ोटो डालते थे। बाहर से सब परफेक्ट लगता था, पर अंदर से खाली। रात को जब मैं छत पर अकेला बैठता था तो लगता था जैसे कि मैं अपनी ही ज़िंदगी में मेहमान हूँ। मैं जी नहीं रहा था, मैं बस दिन काट रहा था। फिर एक सुबह कुछ अलग हुआ। अलार्म बजा, मैं उठा और पहली बार मैंने खुद से पूछा, मैं कब तक ऐसे ही जीऊँगा। उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। मैं एक पुरानी डायरी लेकर बैठ गया। मैंने एक पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं लिखना शुरू करूँगा, रोज़ 30 मिनट। बस इतना ही, कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई परफेक्शन नहीं। पहला दिन अजीब था, ना खाली रहा, शब्द नहीं आए। मैंने सिर्फ तारीख लिखी और बंद कर दी। दूसरा दिन 2 लाइन लिखी। तीसरा दिन आधा पन्ना। मैं परफेक्ट नहीं था, पर मैं लगातार था। कुछ दिनों बाद शक आने लगा, इससे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तू लेखक नहीं बन सकता। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे वाह, अब कवि बन गया। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हुए, मुझे बुरा लगा। फिर समझ आया, हर कोई तुम्हारे सफ़र में साथ नहीं रह सकता। कुछ लोग सिर्फ एक स्टेशन तक ही होते हैं। मैं चलता रहा। धीरे धीरे एक बात समझ आई कि धीमी प्रगति भी प्रगति होती है। मैंने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। मैं अपनी कल वाली खुद से तुलना करने लगा। आज मैं कल से 1% बेहतर हूँ, बस यही काफ़ी है। असफलता भी आई। मैंने एक छोटी सी कहानी एक मैगज़ीन को भेजी, रिजेक्ट हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। पहले मैं टूट जाता, अब मैं सीखता। हर रिजेक्शन मुझे बताती थी कि कहाँ सुधार करना है। असफलता दुश्मन नहीं, टीचर थी। 6 महीने बीत गए, अनुशासन मेरी ताकत बन गया। थका हुआ दिन हो, मन ना हो,
कोई तारीफ़ ना करे, मैं फिर भी लिखता, क्योंकि मैंने वादा खुद से किया था, दुनिया से नहीं। और फिर चीज़ें बदलने लगी। मेरे शब्दों में वज़न आया, आत्मविश्वास आया। एक लोकल कैफ़े ने मुझे अपने इवेंट में पढ़ने के लिए बुलाया। 10 लोग आए। मैंने कांपते हाथों से पढ़ा, लेकिन पढ़ा। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था जो एक छोटी पब्लिशिंग हाउस चलाता था। उसने कहा, तुम में सच्चाई है। वही मौका था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। पर सच कहूँ, मौका मुझे नहीं मिला, मैंने उसे तैयार किया था। किस्मत उन्हीं को मिलती है जो तैयार होते हैं। मैंने इजाज़त मांगना बंद कर दिया, ना माँ बाप से ना समाज से। मैंने खुद को इजाज़त दी थी, शुरू करने की, गिरने की, बेवकूफ़ दिखने की। मेरे अंदर की आवाज़ बदल गई। पहले वो कहती थी मैं नहीं कर सकता, अब वो कहती है मैं सीख सकता हूँ। पहले सवाल था अगर मैं फ़ेल हो गया तो, लेकिन अब सवाल है अगर मैं उड़ गया तो। मैंने अपनी संगत बदली, किताबें, पॉडकास्ट, वो लोग जो मुझे ऊपर खींचते थे। मैंने अपनी ऊर्जा बचानी सीखी। हर बहस में नहीं कूदता, हर राय नहीं सुनता। और मैंने आराम करना सीखा। पहले मैं थक कर छोड़ देता था, अब मैं थक कर आराम करता हूँ। आराम करना छोड़ना नहीं है, ये काम का हिस्सा है। 1 साल बाद जब मैंने पुरानी तस्वीरें देखी तो मैं खुद को पहचान नहीं पाया। शक्ल से नहीं, सोच से। मैं परफेक्ट नहीं था, पर मुझे खुद पर गर्व था। मैंने इरादों से ज़िंदगी बनाई थी। फिर एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, आँखों में वही खालीपन जो कभी मेरी आँखों में था। उसने कहा, भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं मुस्कुराया, क्योंकि रोशनी बांटने के लिए होती है। मैंने उसे वही कहा जो काश किसी ने मुझसे कहा होता, तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं देखनी है, बस अगला कदम देखो। तुम लेट नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम बन रहे हो। चलते रहो, चाहे धीरे ही क्यों ना हो। तुम्हारा भविष्य वाला तुम्हें देख रहा है, उसे गर्व महसूस करवाओ। सपना कभी बड़ा नहीं था, बस तुम्हें उसके लायक बनना था, और तुम बन जाओगे। आरव आज भी लिखता है, पूरे 30 मिनट, कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी कम, लेकिन रोज़ लिखता है। क्योंकि उसने खुद से एक सुबह वादा किया था, और वो वादा उसने निभाया है। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, एक फैसले से आता है। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं, निरंतरता की ज़रूरत है। तुम जब खुद को इजाज़त दे देते हो शुरू करने की, तब दुनिया रास्ता देने लगती है। तुम्हारे अंदर पहले से ही वो रोशनी है, बस पहली किरण बाहर आने दो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो आज एक छोटा सा कदम उठाओ। एक पन्ना लिखो, एक फ़ोन कॉल करो, एक वॉक पर जाओ। कमेंट में लिखो कि तुम आज क्या शुरू कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। आखिर तुम कब तक दूसरों की रेस में दौड़ोगे? और अगर जीत भी गए तो क्या वो जीत तुम्हारी होगी? ये कहानी है कबीर की, जिसने जीतना छोड़कर जीना सीखा। मेरा नाम कबीर है। मैं बचपन से ही सबसे आगे वाला बच्चा था। क्लास में फर्स्ट आना, रेस में फर्स्ट आना, सबसे ज़्यादा लाइक्स लेना। मेरे पापा कहते थे, बेटा, दुनिया सिर्फ विनर्स को याद रखती है। मैंने ये बात दिल पर ले ली थी। मैंने हर चीज़ को कंपटीशन बना दिया था। दोस्त ने नई बाइक ली तो मुझे कार चाहिए। कज़न की जॉब लगी, मुझे उससे बड़े पैकेज वाली चाहिए। किसी ने ट्रिप की फ़ोटो डाली, मुझे उससे बेहतर लोकेशन चाहिए। मैं लगातार दौड़ रहा था, पर मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऊपर से तो मैं खुश दिखता था, मगर अंदर से मैं थका हुआ था। फिर एक दिन सब बदल गया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जिससे मैं हमेशा कंपेयर करता था, उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया और 6 महीने में फंडिंग उठा ली, न्यूज़ में नाम आया। सब ने कहा, वाह आदित्य। मैंने मुस्कुराकर बधाई दी। घर आकर मैं टूट गया। जलन, गुस्सा, शर्म और पता नहीं क्या क्या। मैं खुद से नफरत करने लगा। मेरे मन में यही चलता था कि तू नाकाम है, तू पीछे रह गया, तू कुछ नहीं कर सकता।
उस रात मैंने पहली बार सच बोला। मैं आदित्य से नहीं, मैं खुद से हार गया था। मैंने अगले दिन जिम जाना छोड़ दिया। ऑफिस में मन नहीं लगा। मैं बस स्क्रॉल करता रहता था, सबकी सक्सेस देख कर जलता रहता था। एक शाम मुझे पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे? और बस मैं फट पड़ा और मैंने बोला, मैं थक गया हूँ पापा। मैं हमेशा भाग रहा हूँ पर पहुँच नहीं रहा। पापा चुप रहे और फिर बोले, कबीर तू रेस तो दौड़ रहा है लेकिन तेरी रेस ये है ही नहीं। उस लाइन ने मुझे हिला दिया और फिर पहली बार मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। जवाब नहीं आया क्योंकि मैंने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं था। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली, फ़ोन बंद किया और मैं अपने नाना के गांव चला गया। वहाँ कोई वाईफाई नहीं था, ना ही कोई कंपटीशन था। सुबह नाना के साथ खेत जाता, दोपहर में किताब पढ़ता और शाम को नदी किनारे बैठता। तीसरे दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं कहानियाँ लिखना चाहता हूँ। मैं बचपन में लिखता था पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें स्कोप नहीं था। मैंने गांव में ही लिखना शुरू किया। कोई एडिटर नहीं, कोई लाइक्स नहीं, बस मैं और कागज़। मैं एक हफ्ते बाद शहर लौटा पर मैं वही कबीर नहीं था। मैंने एक नियम बनाया जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना चाहता। मैंने सोशल मीडिया से उन अकाउंट्स को अनफॉलो किया जो मुझे ट्रिगर करते थे और मैंने अपने दोस्तों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना शुरू किया बिना खुद को छोटा महसूस किए। यह मेरे लिए आसान नहीं था। पुरानी आदत लौटती थी। कोई प्रमोशन पाता तो पेट में अजीब सा महसूस होता था। तब मैं खुद से कहता, उसकी अलग रेस है और मेरी अलग। मैंने अपनी प्रगति को ट्रैक करना शुरू किया। हर रविवार मैं लिखता, इस हफ्ते मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूँ। बस इतना ही। मैंने ईगो को साइड में रखकर सीखना शुरू किया। मैंने आदित्य को कॉल किया और बोला, भाई मुझे तुझसे जलन होती थी, सॉरी, मुझे बता तूने कैसे शुरू किया। वो हंसा और बोला, मुझे पता था, चल कॉफ़ी पीते हैं। उस दिन मैंने एक मेंटोर पाया और एक दुश्मन खोया जो मैंने खुद बनाया था। मैंने लिखना जारी रखा। एक ब्लॉग शुरू किया। पहले महीने 50 लोग पढ़े। मैं खुश था क्योंकि ये मेरे 50 हैं। 6 महीने बाद एक पब्लिशर ने मेरा आर्टिकल पढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ सच्ची है। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी पर वो नौकरी मुझे बोझ नहीं लगती थी। वो मुझे लिखने की आज़ादी देती थी। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मैं अब शांत हूँ। पहले मैं हमेशा साबित करने में लगा रहता था पर अब मैं जीने लगा था। मैंने समझा कंपटीशन तो बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर कल वाला तुम हो और ईगो तुम्हें तेज़ दौड़ाता है पर गलत दिशा में। एक दिन मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया मैं अपने दोस्त से पीछे रह गया हूँ। मैंने कहा, तू पीछे नहीं है, तू बस अपनी लेन में नहीं है। लोगों को देखना बंद कर, खुद को देखना शुरू कर। जीतना ज़रूरी नहीं है, बढ़ना ज़रूरी है। और याद रख, जो रेस तेरी नहीं है उसे जीत कर भी तू हार ही जाएगा। कबीर आज भी लिखता है, कभी कभी मन करता है कंपेयर करने का तो वो मुस्करा देता है और कहता है, फिर से नहीं, क्योंकि उसने रेस छोड़ दी है और अब वो सफ़र पर है। तुम्हारी सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम दूसरों की रेस दौड़ने लगते हो। तुलना ईगो का खाना है और ईगो तुम्हें कभी भरने नहीं देता। अपनी लेन चुनो, अपनी गति चुनो, रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनो, क्योंकि असली जीत ट्रॉफी में नहीं, शांति में है। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो आज एक नाम लिखो जिससे तुम कंपेयर करते हो और उसे ब्लेस करके छोड़ दो और अपनी रेस शुरू करो।